નમસ્કાર, સીએમજીએમ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સુરતમાં આવેલા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિત શાહ અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ક્રિપ્કો ખાતે ઇથેનોલ તૈયાર કરવાના પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કર્યા બાદ ત્યાં સંબોધન પણ કર્યું હતું, જેમાં ભાજપ સરકારની વાહવાહી કરી હતી। સુરત શહેરમાં મંગળવારના રોજ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિત શાહ અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જ્યાં મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનું સંબોધન કરતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમ પીએમ મોદીજીના આત્મનિર્ભર ભારતના સપનાની સાકાર કરવાનું એક પગલું છે। ક્રિપ્કોના પ્લાન્ટમાં 350 કરોડના ખર્ચે બાયો ઇથેનોલ તૈયાર કરવામાં આવશે। હજીરામાં પ્લાન્ટ શરૂ થતાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં ખેડૂતોને ફાયદો થશે। સ્થાનિક કક્ષાએ રોજગારીમાં પણ વધારો થશે। દેશમાં સહકારિતા મંત્રાલય શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। પીએમ મોદીજીએ દેશના અમૃતકાળમાં 5 સંકલ્પ આપ્યા છે। ક્રિપ્કોએ કરેલી આ પહેલ આત્મનિર્ભર ભારત માટે એક પગલું બનશે। ક્રિપ્કો ખાતે બાયો ઇથેનોલ પ્લાન્ટનું ખાતમુહૂર્ત કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કર્યા બાદ જણાવ્યું હતું કે બાયો ઇથેનોલ પ્લાન્ટનું ખાતમુહૂર્ત થયું છે। ક્રિપ્કોએ આ પરિયોજના કરી છે, જેનાથી 2,50,000 પ્રતિદિન બાયો ઇથેનોલ ઉત્પાદન કરનાર પ્લાન્ટ સ્થાપિત થશે। ગુજરાતમાં 9 જિલ્લામાં ખેડૂતો મકાઈ વાવીને આજીવિકા મેળવે છે। આ પ્લાન્ટથી સીધો ફાયદો ખેડૂતોને થશે। ખેડૂતો માટે વેસ્ટેજ મકાઈ આ પ્લાન્ટમાં ઈંધણ બનાવીને દેશના અર્થતંત્રને પણ ફાયદો આપશે। ક્રિપ્કોનો પ્લાન્ટ ખેડૂતોના જીવનમાં નવું પ્રકાશનું કિરણ બનશે અને એક એવા ઉત્પાદન કે જેનાથી ખેડૂતોને કોઈ ફાયદો થતો નથી અને બાયો ઇથેનોલ તેનું બનશે। બાયો ઇથેનોલ બનીને જે વેસ્ટેજ વધશે તે પશુપાલકોના ઉપયોગમાં પણ આવશે। મરઘી અને મત્સ્ય ઉદ્યોગ માટે તે પણ ઉપયોગમાં આવશે। દેશમાં 9 લાખ કરોડ રૂપિયાની વિદેશી ભંડાર ઈંધણમાં જાય છે। યુએસએ 55, બ્રાઝિલ 27 અને ભારતમાં 2% ઇથેનોલનું ઉત્પાદન કરે છે। ભારતની પેટ્રોલ અને ડીઝલની ખપતના 20% જથ્થો ભારત બ્લેન્ડિંગ કરશે। આ લક્ષ્ય 2030નું છે। 10% ઇથેનોલ મિક્સ કરવામાં આવતા 46,000 કરોડ રૂપિયાનું ઇમ્પોર્ટ ઓછો થયો છે, એટલે ખેડૂતોની આવક 46,000 રૂપિયા વધી છે। અનેક રીતે ખેડૂતોને ફાયદો કરવાનો પ્રોજેક્ટ ક્રિપ્કોએ શરૂ કર્યો છે। જે લોકો ઇથેનોલનું કારખાનું લગાવશે તેને વર્ષનું 50% વ્યાજ ભારત સરકાર ચૂકવશે। દેશભરમાં આગામી દિવસોમાં અનેક પ્લાન્ટ લાગશે। 1 લાખ કરોડનો બચાવ આ ઇથેનોલ પ્લાન્ટ કરશે, જે વર્ષ 2025 સુધી થવાનો છે। ક્રિપ્કો ભારતના ખેડૂતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે। ક્રિપ્કો ખાતે પ્લાન્ટના ઉદ્ઘાટન સમયે અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। शिलान्यास होगा और इसके साथ साथ डॉक्टर चंद्रपाल जी ने एक सहकारिता सम्मेलन भी आयोजित किया है। वैसे क्रिप्को ने आज जो शुरुआत की है वो कोऑपरेटिव सेक्टर मोदी जी के पर्यावरण सुधार, कृषकों की आय को, किसानों की आय को दोगुना करना, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर बढ़ाना और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की चैलेंज को भी संभालकर अपने प्रयास से कम करने का जो अभियान मोदी जी ने उठाया है, इसी की एक कड़ी है। मैं चंद्रपाल जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद कि इन्होंने ये जो परियोजना की है वो परियोजना से हजीरा में 2,50,000 लीटर दैनिक क्षमता वाला बायो इथेनॉल संयंत्र स्थापित होगा। मित्रों, ये संयंत्र लगभग 8.25 करोड़ जैविक ईंधन का, बायोडीजल का उत्पादन करेगा और इसके साथ साथ लगभग 2.5 लाख मेट्रिक टन मक्का या तो पर्यायी खेत उपजों को, किसान उपजों को एक अच्छा बाजार भी। तो गुजरात में जहां पर ये संयंत्र लागू होता है वहां आकाश की खेती जहां होती है
लगभग 9 जिलों में आज मक्का उनका मुख्य उपज है। किसान मक्का बोकर अपनी आजीविका का पालन करता है और इसके साथ साथ 10 जिले ऐसे और हैं जहां भौगोलिक रूप से हम देखें तो मक्का हो सकता है बड़े इरिगेटेड लैंड। अगर 2.5 लाख मेट्रिक टन मक्का ये संयंत्र अपने आप में खपत करता है तो उससे बहुत बड़ा फायदा, सीधा फायदा गुजरात के किसानों का होगा। जो मक्का खाने के काम में आता है इससे भी इथेनॉल बनेगा, मगर खाने के काम के मक्का को अलग निकाल दे तो खराब गुणवत्ता वाले दाने, चूहों और कीटकों से प्रभावित दाने, पानी से सिल जाने वाले दाने, कई प्रकार का मक्का जो आप फेंक देना पड़ता है, वो मक्का भी इस संयंत्र में ईंधन बनाकर मल्टीपर्पज बहुआयामी फायदा देश के अर्थतंत्र को देगा। मित्रों, जब मैंने कहा खराब दाने निकलते हैं, पानी से स्कूल जाते हैं, चूहों और कीटक उसका नुकसान कर देते हैं, तो किसान निराश हो और दूधों का ये संयंत्र वो निराश किसानों के जीवन में एक नई आशा का संचार करेगा, इसका मुझे विश्वास। इसके साथ साथ जैसे चंद्रपाल जी ने बताया, कपास की खंडल, मूंगफली के छिलके, अरहर की खंडल, अरंडी की खंडल, खोई, इस प्रकार के अनेक जो उत्पाद है जिसका आज कोई उपयोग नहीं हो सकता, जिससे किसान को कोई आर्थिक फायदा नहीं हो सकता, वो सारी चीजें भी यहाँ से इथेनॉल बनाएगी। ये चीजों से इथेनॉल बनेगा, पेट्रोल और डीजल का विकल्प बनेगा, पर्यावरण को संभालेगा और क्योंकि इतना पेट्रोल आयात कम करना पड़ेगा, हमारे विदेशी मुद्रा बाजार को भी वो सक्षम करेगा। ट्रिप्को की इथेनॉल परियोजना ड्राई डिजिटल ग्रेन्स नामक उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा भी इथेनॉल बनाने के बाद जो कचरा बचता है उसे पशु चारा के लिए भी रॉ मटेरियल मिलेगा। मुर्गी पालन और मत्स्य पालन का भी रॉ मटेरियल वहीं से मिलेगा। और हम सब जानते हैं पशुपालन के क्षेत्र में अमूल के सहयोग से गुजरात ने देश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 60,000 करोड़ रुपए का दूध का उत्पादन किया गया। अगर उसके पशुओं के चारे के लिए उच्च प्रोटीन युक्त ये जो ड्राइड डिजिटल ग्रेन्स मिलेंगे, इससे मुझे भरोसा है कि पशुपालन को भी काफी इसका अप्रत्यक्ष फायदा होगा। मित्रों, मैं आप सबका ध्यान भारत के पेट्रोलियम परिदृश्य पर डालना चाहता हूं, जिसको एक ग्रिडको का बायोडीजल प्लांट और इसके साथ देश भर में मोदी जी की पॉलिसी के कारण अनेक ऐसे प्लांट बन रहे हैं जो इथेनॉल का उत्पादन करें। इसके बहुआयामी फायदे को समझने के लिए हमें भारत के पेट्रोलियम परिदृश्य को समझना होगा। 2011-12 में भारत कच्चे तेल का आयात 172 MMT करता था और 2021-22 में एक दशक के बाद 172 से बढ़कर 212 MMT करता है। और कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता 83% से बढ़कर 88%। क्योंकि अगर विकास करना है तो ऊर्जा के क्षेत्र में कच्चे तेल के महत्व को हम सब जानते हैं, मगर आयात कम करनी है, आत्मनिर्भर होना है, तो इसका एक और भी रास्ता है। क्योंकि आज हमारे देश का 9 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ कच्चे तेल के आयात से आता है और हमें काफी दिक्कतें आती हैं। संगठन
प्रकार से वैज्ञानिक प्रयास किसी और देश ने नहीं किया। तो आज भी इतने प्रयास के बाद भी इथेनॉल के उत्पादन में हम देखें तो यूएसए समग्र विश्व के 55% इथेनॉल उत्पादन करता है, ब्राजील 27% करता है और भारत 3% करता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र के अंदर पड़ी है, जो संभावनाओं का दोहन जैसे क्रिप्को ने किया है सभी सहकारी इकाइयों में करना चाहिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकारी इकाइयों में आगे आना। मित्रों, मोदी जी ने 5 जून 2021 को पर्यावरण दिवस पर इथेनॉल सम्मिश्रण के कार्यक्रम की एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट जारी की। वो एक्सपर्ट कमेटी ने 2030 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रित करने का लक्ष्य दिया। मतलब भारत के पेट्रोल और डीजल की खपत का 20% इथेनॉल बनाकर हम ब्लेंडिंग करें, ये लक्ष्य 2030 का है। इसके अंदर गन्ना, मक्का, टूटे चावल और किसी भी खाद्यान्न का बचा हुआ कचरा इसके लिए उत्पादित होता है। मगर मोदी जी ने 20% के साथ साथ 10% का लक्ष्य भी रखा था कि नवंबर 2022 के पहले हम 10% ब्लेंडिंग कर देंगे। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं, मैं सितंबर में आया हूं आपके सामने। अब से 5 माह पहले ही भारत ने 10% इथेनॉल के ब्लेंडिंग के लक्ष्य को सिद्ध कर दिया है। न केवल 10% को सिद्ध किया है, इसके साथ साथ 20% का लक्ष्य 2030 का रखा था, इसको प्रीपोन कर 2025 तक 20% इथेनॉल हम डालेंगे। एक प्रकार से 10% के सम्मिलन से सम्मिश्रण करने से लगभग 46,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट कम हुआ। मित्रों, अर्थशास्त्री देखते हैं कि 46,000 करोड़ 46,000 करोड़ रुपीस का इंपोर्ट हमें कम किया, तो उनका देखने का नजरिया है, सही भी है। विदेशी मुद्रा भंडार समृद्ध हुआ है। मेरे जैसे कोऑपरेटिव कार्यकर्ता देखते हैं कि 46,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट तो कम हुआ है, परंतु 46,000 करोड़ रुपया देश के किसानों की आय बढ़ी है, क्योंकि जनरल का पैसा किसान के पास है और लगभग भारत की कुल बिक्री का ये 10%। इसके साथ साथ डीएपी, एनपीके, यूरिया सभी चीजों का उत्पादन करते हैं। अब इसके साथ साथ क्रिप्को ने स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है, क्रिप्को एग्री बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो किसानों के फल और सब्जियों को प्रोसेस कर निर्यात कराकर किसानों की आय में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। अगर कृषि के क्षेत्र में विशेष सब्जी और फल के प्रसंस्करण को जितनी स्पीड बढ़ाएगा, इतना देश के किसानों का फायदा होगा। और इसके साथ साथ अच्छे बीजों पर संशोधन करने के लिए, इनको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए 12 अत्याधुनिक प्रसंस्करण इकाइयां उन्होंने स्थापित की है, जो 1.90 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज पूरा करने का काम करती है। और इसके साथ साथ तरल जैव उर्वरक निर्माण प्रणाली भी, लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना रहे हैं और जीवाणु का कल्चर करता भी क्रिप्को है, जिसने पॉजिटिव जीवाणु जो कृषि में उपयोगी होते हैं इसका भी फायदा करेगा। मित्रों, सहकारिता मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में अनेक भी नए कदम उठाने का तय किया। टैक्स का कंप्यूटराइजेशन, बहुआयामी टैक्स बनाना, टैक्स को आईपीओ का एफपीओ का स्टेटस देना, इसके साथ साथ क्रिप्को, इफ्को, अमूल ऐसी संस्थाएं मिलकर एक एक्सपोर्ट हाउस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बनाने जा रहे हैं,
जो किसानों की उपज को कोऑपरेटिव बेसिस पर एक्सपोर्ट कर देगी और मुनाफा सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जाएगा। इसके साथ साथ बीज संशोधन के लिए भी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बनाने जा रहे हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऑर्गेनिक खेत के सर्टिफिकेशन के लिए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए भी एक बहुराज्यीय सहकारी समिति हम बनाने जा रहे हैं। गुजरात राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, राजभाषा का काम मेरे साथ देखने वाले गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, निशीथ प्रमाणिक जी, इस सूरत की ही सांसद जो आज हम सब की मेजबानी कर रही है, और रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश जी, हमारे शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजकुमार रंजन जी, मेरे साथ उपाध्यक्ष संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष हैं श्री भर्तृहरि मेहताब जी। मैं एक बात बीच में बताना चाहता हूं कि मैं पदेन अध्यक्ष हूं, भर्तृहरि जी उपाध्यक्ष हैं। हम दोनों हिंदी नहीं बोली जाती है ऐसे राज्य से आते हैं। मैं गुजरात से आता हूं, वो उड़ीसा से आते हैं। गुजरात के दमदार और यशस्वी गृह मंत्री भाई हर्ष संघवी जी, हमारी सचिव बहन अंशुली आर्या जी, और आज सूरत नगरी में यहाँ पर आए हुए सभी राजभाषा प्रेमियों को मेरा मन से प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले तो मैं देश और दुनिया के सभी हिंदी प्रेमियों को आज हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम सब के लिए संविधान सभा के निर्णय को सिर्फ याद करने का दिन नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि 75 साल से 100 साल ये जो अमृत काल है, इस संकल्प लेने का और संकल्प की सिद्धि करने का समय है। हम सब ने, पूरे देशवासियों ने संकल्प लेने की जरूरत है कि 25 साल के अंदर हमारा देश कोई भाषा की लघुता ग्रंथि से मुक्त होकर हमारी स्वभाषाओं में देश का विकास करेगा और देश को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाएगा। हमारी राजभाषा, हमारी स्थानीय भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में, और जब तक हम ये बात का संकल्प नहीं करते कि इस देश का शासन, इस देश का प्रशासन, इस देश का ज्ञान, इस देश का अनुसंधान हमारी भाषाओं में होगा, राजभाषा में होगा, तब तक इस देश की क्षमताओं का हम उपयोग नहीं कर सकते। मित्रों, ये सब चीजों को आज संकल्पित करने का दिन है। इसलिए मैं देश भर में, दुनिया भर में फैले हुए हिंदी प्रेमियों को, राजभाषा प्रेमियों को कहना चाहता हूं कि ऐसा मत समझिए कि राजभाषा के विस्तृत करने का, राजभाषा को आगे बढ़ाने की लड़ाई जो है वो हम पीछे छोड़ चुके हैं। को आगे बढ़ाने का मौका ही अब आया है। ये लड़ाई को जीतने की स्तर पर ले जाए। मित्रों, आज सूर्यपुत्री ताप्ती के किनारे पर इस विशाल सभागार में हिंदी सम्मेलन को देखकर, राजभाषा सम्मेलन को देखकर मन को बड़ा आराम मिलता। हिंदी के इस सम्मेलन के लिए, राजभाषा के इस सम्मेलन के लिए
हमने सूरत का चयन इसलिए किया था, दो कारण थे। एक तो सूरत वीर नर्मद की भूमि, वीर नर्मद ने शायद देश में सबसे पहले अपनी भाषाओं के महत्व को उजागर किया था। उन्होंने देश भर में अपनी भाषाओं में इस देश का व्यवहार हो, इसका आग्रह रखा। उन्हें पूरे गुजराती लोगों को एक स्वप्न दिया था गरवी गुजरात का, और उसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले कहा था, इस देश का शासन, इस देश का व्यवहार ये हिंदी में चलना चाहिए, कोई विदेशी भाषा में नहीं। ये वीर नर्मद की भूमि। और दूसरा, ये सूरत उत्साह की भूमि है, ये सूरत मनोरथ रखने वालों की भूमि है, और ये सूरत मनोरथ सिद्ध करने वालों की भी भूमि है। इसीलिए सूरत को हमने तय किया था। पहले काशी में गए थे, यहाँ खड़ी बोली से हिंदी का आज का स्वरूप लाने में काशी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और आज सूरत आए हैं जहाँ वीर नर्मद के 1900 साल के 1900 के ईस्वी 1900 के पहले के संकल्प को चरितार्थ करने का संकल्प हमने करना है। मित्रों, महात्मा गांधी ने राजभाषा के लिए एक ही वाक्य में बहुत सुंदर उसकी जरूरियात का व्याख्यान किया था। उन्होंने कहा था, राजभाषा हिंदी के बिना ये राष्ट्र गूंगा है, हिंदी ही राष्ट्र को बोलता कर सकती है। बहुत बड़ा वाक्य है। हमारी स्वभाषाओं के गौरव को महात्मा गांधी ने एक ही वाक्य से पूरे विश्व के सामने रखने का काम किया। और मैं आज कहता हूं मित्रों, हिंदी हमारे मन की भाषा है, हिंदी हमारे राष्ट्र प्रेम की भाषा है, और हिंदी आम हिंद के जन की भाषा है, आम जन की भाषा है।